नमो भगवते वासुदेवाय। भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धाना निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः दुर्भंगाश्च जनान् वीक्ष मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् दद्दौ हि तं ममोगद्रेक्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki. Translation. The great sage, who was fully equipped in knowledge, could see through his transcendental vision the deterioration of everything material due to the influence of the age. He could see that the faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus he contemplated for the welfare of men in all statuses and orders of life. Purport. The unmanifested forces of time are so powerful that they reduce all matter to oblivion in due course. In Kali Yuga, the last millennium of the round of 4 millenniums, the power of all material objects deteriorates by the influence of time. In this age, the duration of material body of the people in general is much reduced, and so is the memory. The action of the matter has also not much incentive. The land does not produce food grains in the same proportions as it did in the other ages. The cow does not give as much milk as it used to give formerly. The production of vegetables and fruits is less than before. As such, all living beings, both men and animals, do not have sumptuous, nourishing food. Due to want of so many necessities of life, naturally the duration of life is reduced. The memory is short, intelligence is meager, and mutual dealings are full of hypocrisy and so on. The great sage Vyasadeva could not see by his transcendental could see this by his transcendental vision, as an astrologer can see the future fate of man, or an astronomer can foretell the solar and lunar eclipses. Those liberated souls who can see through the scriptures can foretell the future of all mankind. They can see this due to their sharp vision of spiritual attainment. And all such transcendentalists who are naturally devotees of the Lord are always eager to render welfare service to the people in general. They are the real friends of the people in general, not the people political leaders who are unable to see what is going to happen 5 minutes ahead. In this age, the people in general as well as their so-called leaders are all unlucky fellows, faithless in spiritual knowledge and influenced by the age of Kali. They are always disturbed by various diseases. For example, in the present age, there are so many TB patients and TB hospitals, but formerly this was not so because the time was not so favorable. The unfortunate men of this age are always reluctant to give a reception to the transcendentalists, who are representative of Srila Vyasadeva and selfless workers, always busy in planning something which may help everyone in all statuses and orders of life. The greatest philanthropists are those transcendentalists who represent the mission of Vyasa, Narada, Madhva, Chaitanya, Rupa, Saraswati, etc. They are all one and the same. The personalities may be different, but the aim of the mission is one and the same, namely to deliver the fallen souls back home, back to Godhead. हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवतम कक्षा में, क्लास में, लेक्चर में, प्रवचन में। तो थीम कंटिन्यूज। विशेषता भगवान के भक्त वैष्णव ये अपने कंपैशन, कृपा नाम के एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं।
भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं स्ट्रगल करते हैं, तकलीफ में है, उन सभी को देखने के बाद कोई भी उच्च स्तर का व्यक्ति होता है तो उसको निचले स्तर के व्यक्ति का दुख दर्द देख के केवल एक ही भावना आएगा कि अच्छा हुआ मैं नहीं इसमें फंसा। परंतु वैष्णव जब अपने निचले स्तर के या चेतना में जो अभी तक ऊपर उभरे नहीं है, ऐसे जीवात्माओं को देख के जब उनका स्ट्रगल देखते, उनकी परेशानियां देखते इस भौतिक दुनिया में, तो उनके हृदय में ये नहीं आता है कि आई एम सेफ। उनके हृदय में ये आता है कि इन लोगों को भी मैं कैसे ऊपर उठा सकता हूं। जो भक्ति में भगवान की भक्ति करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति मैं आज कर रहा हूं, वही आनंद की प्राप्ति में बाकी बचे हुए जीवात्माओं को भी कैसे दे सकता हूं जो इस भौतिक जगत में तकलीफों से गुजर रहे हैं। तो हर एक वैष्णव के लिए ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम रहती है। जब नरसिम्हा देव आए और हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद उन्होंने प्रहलाद महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रहलाद महाराज को बोला कि आप मांगिए, आपको जो वरदान मांगना है मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं। तो प्रहलाद महाराज सर्वप्रथम बोले कि मेरे जो पिताजी थे ये अज्ञानी थे, तो उनके अज्ञानतावश उन्होंने मुझे तकलीफ दी है या बाकी भक्तों को तकलीफ दी है। मेरी इच्छा है कि आप उनको आपकी कृपा दें। ये वैष्णव का भाव होता है। जैसे परीक्षित महाराज के केस में भी जब श्रृंगी ने उनको शाप दिया तो परीक्षित महाराज ने ऊशाप नहीं दिया। परीक्षित महाराज ने सेना लेके आश्रम के ऊपर चढ़ाई करके श्रृंगी को बंदी बना के काल कोठरी में नहीं डाला। उन्होंने बस उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और वो गंगा के किनारे चले गए। तो उसी दरमियान जो शम्यक ऋषि श्रृंगी के पिताजी है, एक बहुत सुंदर सा श्लोक बोलते हैं कि वैष्णव जो होता है वो किस पद्धति से होता है। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की हुई आज तक। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि। जितने भी भक्त है उनका कोई तिरस्कार करे, उनको कोई गाली दे, उनको कोई षड्यंत्र रचे उनके खिलाफ या उनको मारे या मार डालने की कोशिश करे, वो बदले की भावना अपने हृदय में कभी नहीं रखते हैं। इस भौतिक जगत में बहुत ये एक डिफॉल्ट नेचर, एक स्वाभाविक होता है लोगों का कि अगर मुझे किसी ने तकलीफ दी है तो मैं पक्का चांस देखूंगा कि उसके जीवन में भी ये तकलीफें मैं वापस कैसे दे सकता हूं या दे सकती हूं। ये बदले की भावना हमारे अंदर रहती। परंतु परीक्षित महाराज के केस में वो बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं आई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वैसे ही भक्तों के जीवन में अगर तकलीफें भी आती हैं तो भी वो उसको स्वीकार करके आगे चलते हैं। किसी के प्रति अपने हृदय में द्वेष भावना नहीं रहती है। जब परीक्षित महाराज को पूछा गया कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बहुत सुंदर सा एक वाक्य बोला है, मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। तो उस श्लोका में वो बोलते हैं जितने भी ब्राह्मण गण है, वैष्णव गण है, उनका मुझे संग चाहिए। तो पहले अध्याय के 19वें पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 16वां श्लोक है ये 1.19.16। पुनश्च भूयात् भगवते अनंत रतिम प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। तो इस श्लोका का अर्थ ऐसा है, पुनश्च भूयाद भगवती अनंत। अगर मुझे वापस जन्म लेना पड़ता है इस भौतिक जगत में तो मुझे क्या चाहिए? सर्वप्रथम भगवती अनंते रतिम प्रसंग। जो भगवान ने किए हुए जितने भी सारी लीलाएं हैं उनको मुझे सुनने का और उनके प्रति मुझे आसक्ति आ जाए। ठीक है, आई शुड हैव द कंप्लीट अटैचमेंट टू दी अनलिमिटेड सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, अनंत उनका नाम है। फिर उसके बाद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और तीसरा फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ ऑल द लिविंग बीइंग। महत्सु याम्याम उपयामी, जो डिवोटीज है उनका मुझे संग मिलना चाहिए। एंड मैत्रस्तु सर्वत्र, जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में है उन सभी जीवात्माओं के प्रति मेरे हृदय के अंदर मैत्री, करुणा भावना आनी चाहिए। तो विशेषता इस
भौतिक जगत में जब विषय हम भक्ति में डील करते हैं तो 3 पद्धति के लोग रहते हैं जिनके साथ हमें डील करना होता है। एक हमारे वरिष्ठ होते हैं, एक हमारे कलीग समान रहते हैं और तीसरे हमारे जूनियर्स रहते हैं। तो चलते वरिष्ठों के प्रति हमारे हृदय में आदर होना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। फिर जो जूनियर्स होते हैं उनके प्रति आपको कंपैशन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, उनके प्रति आपको एक सिखाने की भावना होनी चाहिए। और जो आपके कलीग्स होते हैं उनके साथ आपको मैत्री होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। जनरली जूनियर के साथ दोस्ती करेंगे तो इशू क्या होता है, उसका चेतना और आपके चेतना में या उसके एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस में फर्क रहता है। तो अगर आप उसके साथ दोस्ती करते हो और आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होता है तो वो वही सॉल्यूशन देगा जो उसके स्तर पर आते हैं, ना कि आपके स्तर पे। बहुत सीनियर के साथ अगर हम हर वक्त एसोसिएशन संघ में रहेंगे तो उनको ग्रांटेड लेना चालू करेंगे, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसलिए बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि जो आपके समवयीन समकालीन व्यक्ति है उनके साथ हमें मैक्सिमम टाइम गुजारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको दोस्त है। आप अच्छा करते हैं तो भी ओके, बुरा करते हैं तो वो आपको बताने की भी हिम्मत रखते हैं कि ये तुमने गलत किया है, इसको सुधारो। इसलिए सबसे ज्यादा अगर भक्ति में आने के बाद हमें किसी का संग लेना चाहिए तो वो संग समकालीन समवयीन भक्तों का लेना चाहिए। तो कलयुग के लक्षण जब व्यासदेव ने देखे, उनके हृदय के अंदर बहुत बड़ी करुणा उत्पन्न हुई कि ये जीवात्माओं को मैं कैसे ऊपर ला सकता हूँ, और उसके ऊपर कंटेम्पलेशन चालू हुआ। भौतिक आध्यात्मिक जीवन में अगर किसी भी व्यक्ति को भौतिक जगत में कोई भी कार्य आप करते तो उसको आपको फिजिकली करना पड़ता है, तब उसका रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। अगर मैं जॉब करूंगा तब मुझे पगार मिलेगा, तब जाके मेरा घर चलेगा, ठीक है। यहां से मैं कॉर्नर पे जाऊंगा तब जाके मुझे रिक्शा मिलेगी, तब मेरा रिजल्ट आता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में रिजल्ट आने के लिए हम लोगों को फिजिकली कार्य करने की भी जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मेंटली भी वो कार्य करता है तो उसको उसका फायदा मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, वसुदेव और देवकी दोनों भी जेल में थे, प्रिजन में थे उस समय, और बच्चा आपको हुआ है, लड़का हुआ है, तो राजा होने के कारण आपको चैरिटी देनी चाहिए, आपको दान धर्म करना चाहिए। परंतु वसुदेव जेल में होने के कारण वो दान धर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक जगह पे बैठ के मेडिटेट करते हुए मानसिक रूप से लोगों को दान दिया था कि मैं आपको ये दान दूंगा, मैं आपको ये दान दूंगा। अरे ये तो बड़ा अच्छा है प्रभु जी, मैं भी जाऊंगा हरे कृष्ण मंदिर में बैठूंगा और मन ही मन में मैं क्या करूंगा, मनन और चिंतन करूंगा कि मैंने इस्कॉन मंदिर को 10 लाख रुपए दे दिए, ओ चलो दान हो गया मेरा। परंतु एक बात याद रखिए, जब वसुदेव जी कृष्ण जन्मने के बाद जब कंस ने उनको छोड़ दिया था और वो अपने राज्य में गए थे, तब जो उन्होंने मानसिक दृष्टि से दान किया था उसको उन्होंने फिजिकली दान किया वापस। तो बस मानसिक पे नहीं रुके, वो आगे जाके जो जो उन्होंने मेडिटेट, चिंतन, मनन, ध्यान करके दिया हुआ था वो उन्होंने ऐसे भी फिजिकली दिया। तो अगर आप यहाँ पे आके मन में चिंतन करते हुए ये करते कि मैंने इस्कॉन मंदिर को इतना दान दिया, तो याद रखिए आपको बाद में यहाँ पे आके वो फिजिकली भी देना पड़ेगा, छूट नहीं सकते। नहीं तो पता चला पेटीएम के ऊपर केवल हम लोगों को ये आ रहे, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज पे मैसेज आए, मानसिक दान रिसीव्ड बाय दिस, मानसिक दान रिसीव्ड बाय दैट, ठीक है। तो पता चला संडे फीस्ट में भी हमने फीस्ट मानसिक दृष्टि से कर ली, 56 भोग की, ठीक है। तो विशेषता उसमें मानसिक के भी 2 चीजें हैं। मानसिक दृष्टि से कोई व्यक्ति अच्छा कार्य भी कर सकता है, बुरा भी कार्य कर सकता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में अगर कोई व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भी कुछ बुरा कार्य करता था तो उसका नुकसान, उसका रिपरकेशंस, परिणाम उसको भोगना पड़ता था।
और जो अच्छा कार्य करते थे उसका भी उसको मिलता था। परंतु कलयुग में अगर कोई बुरा सोचता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना नहीं होता है, परंतु अगर कोई वो अच्छा विशेषता भक्तिमय कार्य करता है तो उसका रिजल्ट उसको मिलता है। ये कलयुग का और एक अच्छा लक्षण है। नहीं तो हम लोग अभी के अभी नीचे चले गए होते, सुतल तल तल वितल महातल पाताल में, क्योंकि हमारे मन के अंदर इतने बुरे बुरे ख्याल हर वक्त आते रहते हैं कि हमें इतने के परिणाम अगर झेलने पड़ते तो शायद से अगला जन्म हमें मिल ही पाता, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली कुछ तो बन जाते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे श्रील व्यासदेव अपने करुणा होने के कारण, तो जैसे मैंने प्रहलाद महाराज का उदाहरण बताया, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को सल्वेशन मोक्ष प्रदान करने का ये किया, भगवान का पद कमलों का आश्रय देने का ये किया, भगवान को आशीर्वाद मांगा। और दूसरा प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा कि जितने भी सारे ये जीवात्मा इस भौतिक जगत में घूम रहे, इन सबका उद्धार कर दो, सबको भगवत धाम लेके जाओ। तो नरसिंह देव बोले इतना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, सबको मैं भगवत धाम लेके जाऊं, वहां पे कुछ चालू कर दिया उन्होंने करना तो। परंतु प्रहलाद महाराज के रिक्वेस्ट के खातर पूरा एक जो पूरा यूनिवर्स है उसको नरसिंह देव ने क्या किया, मोक्ष प्रदान कर दिया। लेकिन दूसरे समय फिर से वो भर गया, क्योंकि लिविंग एंटिटी जीवात्मा ही इतने हैं कि वो रहा वेटिंग लिस्ट पे कि कब जन्म मिलेगा उनको भौतिक जगत में। ठीक है, तो इसलिए प्रहलाद महाराज का कंपैशन इतना ज्यादा था कि सामने वाले का खास्ता सिचुएशन देखते हुए, परिस्थिति देखते हुए उनके हृदय में वो करुणा जागृत होती है। वैसे ही वही प्रहलाद महाराज जब वासुदेव दत्त बन के श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आए, तो वासुदेव दत्त को जब भगवान खुश होकर वरदान मांग रहे तो वासुदेव दत्त बींग प्रहलाद महाराज, उन्होंने एक ही वरदान मांगा, क्या, ये सारे जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान कर दो और मैं उनके जितने भी पाप कर्म है उनके लिए मैं हमेशा नरक में रहने के लिए तैयार हूं, इटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए। लेकिन इतने सारे जीवात्माओं को आप वापस लेके जाइए। सोचिए, किसी दूसरे का किया कराया का सजा अगर हमें मिलती तो हमें कितना बुरा लगता है। जैसे घर में दो बच्चे रहते हैं, एक छोटा बच्चा है वो कुछ तो कर देता है और बड़े बच्चे को आके लाफा मिलता है, तो उस बड़े बच्चे को कितना बुरा लगता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे डांट पड़ रही है, फिर भी मुझे मार पड़ रही है करके। तो परंतु यहाँ पे वासुदेव दत्त सारे जीवात्माओं का पाप कर्म लेने के लिए तैयार थे, परंतु उनको आप भगवत धाम पहुंचा दीजिए। वैसे जैसे मैंने बोला, किसी और ने गलती करने के बाद भी और किसी और ने तकलीफ देने के बाद भी जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखते। श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर 22 मार्केट प्लेसेस में उनको मारा गया। जो जमींदार या फिर क्या बोलते हैं उसे, नहीं, वो जो व्यक्ति था, रामचंद्र खान था या नवाब हुसैन शाह था, जो मुस्लिम रूलर था वहां का, उसको हरिदास ठाकुर जी के नेम फेम से बहुत तकलीफ होने लगी थी और वो तरह तरह के उनके जो मिनिस्टर्स थे उन कान भरते थे। तो ऐसे कान भरने के बाद हरिदास को बोला कि तुम यवन फैमिली में जन्म लेने के बाद भी ये भगवान का नाम लेते हो, तुम्हें 22 मार्केट प्लेसेस में मारा जाएगा करके। तो उनको कोड़े से मार रहे थे, वो कोड़े के टाइम पे हट्टे कट्टे लोग रहते वो मारते। 22 मार्केट प्लेसेस में कंटिन्यूअसली हरिदास ठाकुर को नवदीप में मारते हुए चले गए। अगर उस जगह पे हरिदास ठाकुर के जगह पे अगर कोई दूसरा साधारण सा व्यक्ति होता, आज तक उन्होंने बहुत बार लोगों को मारा था, पहले या दूसरे मार्केट प्लेसेस में ही लोग अपनी जान छोड़ देते थे। हरिदास ठाकुर 22 मार्केट प्लेसेस तक अपना मार झेलते रहे। परंतु जब उनको पता चला वो कोड़े मारने वालों को कि भाई ये मरने वाले तो है नहीं, इसके पास कुछ तो अजीबोगरीब शक्ति है, तो वो हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पे गिरे और हरिदास ठाकुर को बोलते अगर आपने शरीर नहीं छोड़ा तो हमारा जो बादशाह है वो हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर शरीर त्याग देते।
वो निश्चल होके गिरते हैं करके, और फिर उनको नदी में फेंक दिया जाता है। नदी से फिर वापस जीवित अवस्था में आके वो वापस चले जाते हैं, लेकिन इस जगह पे आते नहीं है। तो वो शिला हरिदास ठाकुर, जिनको 22 मार्केट प्लेसेस में मारा गया, तो वो कोड़े मारने वालों के प्रति उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी। उस बादशाह के प्रति उन्होंने बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं रखी। नित्यानंद प्रभु ने जगाए मदाई के प्रति बदले की भावना नहीं रखी। अमरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि के प्रति बदले की भावना नहीं रखी। परीक्षित महाराज ने श्रृंगी के प्रति बदले की भावना रखी नहीं। इंद्रदुम्न महाराज ने अगस्त्य ऋषि के प्रति बदले की भावना रखी नहीं। what is the name of Pritrasur in his previous life? चित्रकेतु महाराज ने पार्वती माई के प्रति बिल्कुल भी बदले की भावना रखी नहीं। आज तक कितने सारे भक्तों के साथ बिना तक उन्होंने कुछ किए तकलीफें आई उनके जीवन में, या फिर किसी और ने तकलीफ देने की कोशिश की उनको, परंतु एक भी भगवान के शुद्ध भक्त ने आज तक कभी भी किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की। क्या हम हमारे हृदय में वही भावना रखते हैं? मंदिर में आने के बाद अगर कोई व्यक्ति हमें डांटता है या हमारा अपमान करता है, अपने हिसाब से, मेरे परसेप्शन से अगर कोई मेरा अपमान करता है, तो उस व्यक्ति को उतना ही क्षमा करने की ताकत मेरे हृदय के अंदर है। अगर नहीं है तो भक्ति में हमें और रिफाइननेस लाना पड़ेगा। केवल शुद्ध भक्त होते हैं जिनके हृदय के अंदर इतनी क्षमा की भावना रहती है कि उनके जीवन में अगर कोई उनको तकलीफ देने का कार्य भी करता है तो भी वो उसको क्षमा करते हैं। फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटफुलनेस, ये दो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर व्यक्ति को हम फॉरगिव नहीं करते, उसको क्षमा नहीं करते हैं, और हम उसने किए हुए चीज को फॉरगेट भी नहीं करते, भूलते भी नहीं है, और वो दिमाग में हमारे अगर घर बना के रखता है, तो उसका तकलीफ जीवन भर हमें भुगतना पड़ता है। उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, हमारा हृदय हमेशा जलता रहता है। इसलिए जीवन में फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये दो प्रिंसिपल्स को थोड़ा याद रखना चाहिए। मंथरा को भगवान रामचंद्र ने केवल छोटे बच्चे थे तब एक मिट्टी का गोला फेंक के मारा हुआ था, उसको मंथरा ने जीवन भर अपने हृदय में रखा था। सोचो, राम को देख के उसका हृदय का कितना क्या बोलते हैं उसको, बर्निंग होता होगा, अंदर जलती होगी वो अंदर से पूरे जीवन भर के लिए। परंतु भगवान रामचंद्र को उससे फर्क नहीं पड़ा है कभी भी जीवन में। रामचंद्र पुरी, माधवेंद्रपुरी पाद को उन्होंने इंस्ट्रक्शन देने के बाद जितने भी सारे भक्त थे सबके आके दोष निकालते थे, सबके आके दोष निकालते। वो दोषारोपण की वजह से उसके हृदय में भक्तों के प्रति वो फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटफुलनेस आ नहीं रहा था। वो तकलीफ में उसको झेलनी पड़ी भक्तों के प्रति अपराध करने की वजह से, कि मैं कितना महान हूं, तुम कितने छोटे हो। इसकी वजह से रामचंद्रपुरी को भी वो तकलीफ झेलनी पड़ी। हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों को हमें भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके हमारे जीवन में हम बहुत थोड़ा पीसफुल माइंड से रह सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर उन अनर्थों को, उन इंसिडेंसेस को हमारे हृदय में लेके चलेंगे हम लोग, तो हम अपनी भी प्रगति आगे भौतिक जगत में कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इवन भक्ति में आने के बाद भी बहुत बार देखा जाए तो तूने मेरे साथ ऐसे किया। सीनियर अगर जूनियर को कुछ बोलता है और जूनियर सुनता नहीं, तो अच्छा बच्चों मैं देखता हूँ तेरे को, तू मेरी नहीं सुनता है, तूने आज तक देखा नहीं कि मैं कौन हूँ इस मंदिर में। मैं टाइम आने के बाद तुझे बताता हूँ, राइट। एंड देन भी हम शुरुआत करते किस चीज की, उस व्यक्ति को हमारी कभी जरूरत पड़े या हमसे कुछ काम आए, और जब काम आए तब आज मैं देखता हूँ नहीं होगा, कुछ भी कर लो, नहीं करे होने वाला तुम्हारा काम। इस तरीके से बदले की भावना रखते। एक जूनियर भी सीनियर के प्रति भी बदले की भावना रख सकता है। प्रभु जी आज मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, जिस दिन मेरे हाथ में मंदिर का मैनेजमेंट आएगा ना, उस दिन मैं आपको देखूंगा आपने जो मेरे साथ किया हुआ है। या फिर वो सीनियर कोई तकलीफ में से जाता है तो जूनियर को बड़ा मजा आता है,
इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा तकलीफ देते हैं ये दूसरों को, कलीग्स के प्रति हमारे हृदय में रहता है करके, तूने मेरे साथ ऐसा किया, रुक मैं तेरे जो किस्से जितने भी सारे हैं ना, जाके प्रभु जी को बोलता हूँ अभी, फिर देखता हूँ कैसे प्रभु जी की नज़र में तो शुद्ध भक्त बन के रहता है। तो ये सारी बदले की भावना इतनी डेट्रीमेंटल है हमारे डिवोशनल सर्विस में प्रोग्रेस करने के लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति में इतनी बड़ी अड़चन है। ये ईर्ष्या के कारण होता है। ये बदले की भावना जो हमारे हृदय के अंदर है वो केवल और केवल ईर्ष्या के प्रति वजह से होती है, और वो ईर्ष्या हमारे हृदय में इतनी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि भगवान से तो ईर्ष्या करके हम भौतिक जगत में आए हुए, और इसी ईर्ष्या को हम बाकी भक्तों के प्रति दिखाते हैं और बाकी जीवात्माओं के प्रति भी दिखाते हैं, और उसके वजह से इस भौतिक जगत में हम इतना बार बार तकलीफ में रहते कि कैसे मैं देखूं, कैसे उसका बुरा कर पाऊं, कैसे मैं किस तरीके से आगे इस व्यक्ति के जा पाऊं। तो ये जो एटीट्यूड है, इसको अगर हम हमारे ईर्ष्या को हम लोगों के कंपैशन में या लिविंग एंटिटीज के कंपैशन में, करुणामय भावना में बदलते हैं तो भगवान को बहुत खुशी होती है। तो व्यासदेव ने वही कंपैशन, वही करुणा की वजह से ये श्रीमद् भागवतम की रचना की गई हुई है। और विशेषता इसमें ट्रांसलेशन में भाषांतर में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, thus he contemplated for the welfare of men, means men means women is also included in that, men मतलब human being, ये कॉन्टेक्स्ट में men ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, in all statuses means what, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, statuses and orders means what, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचर्य, सबके वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया, कंटेम्पलेशन किया। मतलब श्रीमद् भागवतम हर एक व्यक्ति के लिए बना है, नो मैटर किस जाति, किस पंथ, किस मार्ग, किस जेंडर, किस कलर, किस लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आप आए हुए हैं। श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी पंथ का उसके ऊपर एक्सक्लूसिव हक नहीं है, वो सबके लिए बना हुआ है, सबको उसे पढ़ना चाहिए, तभी जाके आध्यात्मिक प्रगति बढ़ सकती है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? What about? हाँ, इग्नोरेंस मीन्स व्हाट, अज्ञान मतलब क्या होता है, हम हमारे रियल स्टेटस को या रियल पोजीशन को हम भूल जाते हैं, और उसके वजह से जितने भी सारे चीजें हमारे जीवन में होते हैं उसको इग्नोरेंस बोला था। जैसे हॉलीवुड में एक मूवी आई थी लायन करके, लायन करके मूवी, मतलब एक छत्तीसगढ़ में रहने वाला सारू नाम का लड़का है जो अपने बड़े भाई के साथ, छोटा सा लड़का था, बड़े भाई के साथ ट्रेन पे जाता है, कोयला वगैरह ऐसा कुछ, उसकी माँ खाने में काम, कोयले के खदान में काम करती थी और भाई के साथ इधर उधर घूमता था। तो एक बार वो जाता है, उसका भाई बोलता है तुम यहाँ पे रुक, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नो 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 नो, दिस इज लाइक अ रियल इवेंट हैपेंड छत्तीसगढ़ का। हाँ, देन ही वेंट टू फॉरेन, मतलब वो ट्रेन में सोता है तो वो सो ही जाता है, दूसरे दिन देखता है तो वो कोलकाता पहुंच गया होता है, एंड कोलकाता में फिर उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना झेलना पड़ता है। फिर उसको कोई अनाथ आश्रम लेके जाता है, वहाँ से एक ऑस्ट्रेलियन कपल जो है उसको लेके चले जाते हैं। फिर भी उसके जीवन में वो तकलीफ थी कि मुझे मेरा भाई और माँ को ढूंढना है। फिर वो गूगल पे सर्च करता है वो पर्टिकुलर लोकेशन, तो उसको मिल जाता है। तो वो भारत जब आता है 20-24 साल के बाद, तो उसकी माँ उसको मिलती है। उसको पता चला था कि उसका भाई वहाँ पे स्टेशन पे छोड़ के गया था, लेकिन जिस दिन उसको छोड़ के गया था उसी दिन उसके भाई की ट्रेन से टकराने से मौत हो गई थी। तो फिर भाई, वो उसकी माँ और उसकी बहन उसको मिलती है, एंड फिर उसको पता चलता है कि वो इतने सालों से जो अपना नाम सारू 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 जो बोल रहा है, उसका नाम सारू नहीं शेरू था करके। तो हॉलीवुड ने लायन मूवी बनाई थी, मे बी, आई डोंट नो, इट्स द सेम।
अच्छा, अच्छा, ओके, हाँ। सो टिल द टाइम ही वॉज इन इग्नोरेंस, अज्ञान में था कि उसका रियल पोजीशन क्या है, रियल आइडेंटिटी क्या है, तब तक वो भले ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, सब सुख सुविधाएं थी, उसको पढ़ना लिखना मिलना था, लेकिन फिर भी वो हृदय में उसका वो खा रहा था उसको कि मेरा वो चाहिए मुझे, वो जो ओरिजिनल पोजीशन है। तो हमारा जो अज्ञान जो है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, हम भगवान को नहीं मानते जबकि हम भगवान के अंश हैं, उसके वजह से हमारे जीवन में ये सारी तकलीफें, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेश आना, इस भौतिक जगत में हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो केवल उसी की वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम अज्ञान में हैं। जिस दिन उस अज्ञान का अंधेरा हटा के हम सूरज की रोशनी आएगी, कृष्ण रूपी सूरज की, माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहार कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ज्ञान के चक्षु से जब ज्ञान के ऊर्जा से जब हमारे चक्षु खुलेंगे, उस दिन ये सारी तकलीफें हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।